well as accepting all the situations without any complaint, whatever comes by the way, by the force of prarabdha, that is predestined. महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, शत्रु मित्र आदि सबके लिए प्रारब्ध से जो कुछ भी कार्य आ जाए उसे यथा योग्य करते हुए भी आप निरंतर अंतर्मुखी हो जाइए। राग छोड़ दीजिए, वासनाओं से परे हो जाइए और सर्वत्र निर्मल शांत चैतन्य मात्र की भावना कीजिए। कुछ कंडीशंस दिए हैं वो। एक तो प्रारब्धवश जो आया उसको स्वीकार करना। स्वीकार करने से शत्रु मित्र कुछ विचार हो ही नहीं सकता है। विचार उसको स्वीकार करने से फिर हम अपना नहीं रख सकते हैं, इसीलिए हमारा कोई इच्छा बलवान हो नहीं सकता है, इच्छाएं काम नहीं करेंगे और उसके कारण फिर हमारे अंदर कोई आसक्ति भी नहीं होगा। और इसी प्रकार अंदर तो भगवान का, परमात्मा जो सच्चिदानंद का हमेशा चिंतन करना, बाहर प्रकृति के वश से जो कुछ भी कहीं भी कुछ भी परिस्थिति बस, प्रारब्ध बस जो परिस्थितियाँ आता है उसको स्वीकार करना चाहिए। ये ज्ञानियों का ये लक्षण है। और राम जी तुम भी ऐसा करो। ये प्रारब्ध क्या होता है? टिल नाउ वी हैव सीन and Lord Vasistha, the Guru Vasistha advising Ramji, "O Ram, you have to accept the present situation without objection, and thereby you will not have your own decision or your choice. You have to accept it. If you can do it, then you are not influenced by the past, nor you are thinking of the future, and you have no ego to reject or accept. So you will not have your desires, then you will not have any attachment towards any objects. In this way, you will be always thinking of the absolute truth inwardly, and outwardly, when you have accepted the situation, your body and senses will do the needful. The demand of the situation will be fulfilled by your body, senses and mind. You are not concerned. Prarabdha. What is prarabdha? Whatever we do, it has a reaction. Every action will have reaction. That reaction, we say it is enjoyment of the action. It comes to us, we have to accept it. And this, when I am the doer, with doership, if I do anything, then I have to be enjoyer also. In that case,
the result of our action we have to accept. We have uh, no choice to reject it because you have been the doer, so you have to accept the result of it. When a student has appeared the exam, whatever result comes, he has to. He has no choice to reject it. He has to accept it. In this way, when you do something, you get the reaction, a result of it, and that result is of three kinds: intense and mediocre and dull. The intense actions will have reactions here and now. For example, if you abuse me, I will not keep the reaction of abusing you back for 1 year or 2 years. After 2 years, I shall abuse you. Does it happen? It is impossible. They are not there. If you slap me, I will kick you. They are not there. I will not wait for 2-3 years to give you a kick. This is called intense action. It will have result, reaction here and now. And the mediocre, little dull, say I have put a mango seed in the ground and I have given all the needfuls, whatever, water, manure and fencing, everything. So it will yield me some mangoes, but not now or tomorrow. It will give you mangoes after 5-6 years. You have to wait for it. This is how the middle class actions will have reactions in the course of time. And dull actions, which are very dull, they will yield their result after a long, long time. It may be in this life or it may be in next life. Some people, some students, they study very hard. They have the desire to become, say, a doctor. I am talking of Indian situation. Some student has become a doctor, but he will not get a job. He will have to wait for a long time. Government job is not so easy nowadays. He may open his own clinic or he has to serve in somewhere in private hospitals or he has to wait. So that depends upon the situation, demand of the situation. In this way, it may yield the result of your studies. Nobody knows when. No guarantee. Or in old age, somebody has got a child in old age. For the whole of his life he could not have any child, and in old age he got a child. We
wish for a child to keep up our dynasty or to help us in old age. The elders expect service from the children in their old age when they are incapable. That is a general expectation. But when you got a child in old age, after 2-3 years you are going to die. Many cases we see like that. After the child is born, the parents die. So the parents are deprived of their expectation. So next life, when there is a desire, it cannot die out without being fulfilled. In this way, the desire may be fulfilled here and now, or after some time, or after long time, in next lives. I want to see God in form. I want to talk to my deity. I have to feed him. I have all these desires. I have to walk with him, talk with him, feed him, and ask some questions. Why does he delay so much? So many complaints are there. I want to see him in form. Though I know the God is not bound to any form, yet I desire. But this desire, when I have it has to fulfill. No action is ever remained without being fulfilled. But it depends upon the intensity of the desire or action. Desire also is an action. We desire something. That desire depends upon how intense it is, how sincere it is, how honest it is. There is a law. Gurudev used to say, where there is a demand, there is a supply. Demand means a desire. I want this. The supply is bound to be there. Desire cannot go in vain. So, when shall I get my desire fulfilled? It depends upon the intensity, sincerity, and honesty of the desire. So, if you are restless like a fish out of water, you have left your food and water, you are breaking your head just like a small child weeps for its mother. Mother has to rush. Similarly, when you are feeling restless, God may come here and now. Or if you have just a desire, I want to see God. At the same time, you want so many things in the worldly parlance. So all those desires also demand time, effort, everything. So you are ever engaged in fulfilling the worldly desires. Your intensity of God vision is very weak. So maybe bahunam janmanam ante jnanavan mam prapadyate. After long lives, after you will get God in form, never mind. This is how all of our desires are of course fulfilled, but it depends upon your intensity of keenness of your desire. So in this way, three types
of action we do. So those which are very dull actions, which yield some result in long time, they will have to rest somewhere. Reaction has to be there where it will work out. It waits for the time and availability of favorable conditions to be fulfilled. So all these desires in subtle form, we call it impressions or memories, they remain accumulated in the subconscious mind, that is in the seed form. Seed form. The desires are there. When they get, desires means impressions, and when they get the favorable conditions and situations, then they come out of the depth of the subconscious mind to the surface, and they try to become many, to flower and fructify. In this way, they are fructified. So, whatever impressions we accumulate in the subconscious mind, that is called sanchit. Sanchit means stored. And whatever actions we are doing now, it is called kriyaman, being going on. We are going on doing. Because every being has to act. It cannot remain without acting. So, that is, the present actions or efforts are called kriyaman, which is going on. And when we start working by the help of a body with the senses, mind, everything, total body, that depends upon some force, how to act, because it has got no accumulated now karma, no accumulated karma just now. It has to depend upon the past. Just as we begin 29th chapter today, because we depend upon yesterday what 28th or other preparations of 29th chapter yesterday we did. We just see a little recap and then we go further. That is called preparation. That is, we have to depend upon the past. And future also is waiting. Whatever work we do, that has to be fructified in near future or little after future or long far future. Future we have to depend. Every moment is passing away to past and future is coming nearer. So we call it near future or far future or far off future. In this way, every action will be fructified. So we depend upon past and future and we
do everything at present. In this way, we are dependent on the past, so those past impressions, a, a amount of past impressions which are ready to fructify. They are ready according to time, situations, everything. So those group of action impressions, they are collected and they come forward. That is called the project for the next birth, a body. So suppose a body has been destroyed, that means a person has met death, and in the subtle world it has to enjoy its subtle karmas, actions, subtle actions it has to enjoy in the subtler world. And when these subtler reactions are enjoyed, then it needs other body as an instrument or vehicle to act and enjoy the past group of impressions. That is called prarabdha, taken from the past. Prarabdha. So this is, we can say, just as the scheme for a class in the schools. For a class, there is a scheme, there is a project, course of education. This class, say ninth class, will have this much of history or geography or science, whatever subject they have to undergo. That particular amount of education will be given to the particular student in the particular class. That is pre-planned. That is why, that is how we have to understand our pre-planned life, that is called prarabdha. We take some stored amount of a particular amount which are ready for fructifying these impressions, and those impressions they have to fructify through some instrument. They have to act and get the result. So a body is required, a vehicle is required as an instrument. Just as a gardener cannot work in the garden without instruments, implements. It needs so many implements. It cannot do anything by its own hands or body. It depends upon some you say spade or some digging instruments, something. So this instrument is a new body. After enjoying in the subtler planes, the subtler reactions, after enjoying, the soul has to take up a gross body to do and to enjoy gross karmas. It is just like a farmer keeping the seeds in the storehouse, and according to the seasons, say in rainy season in India we cultivate paddy, and in winter days we cultivate wheat and maize.
or other cereals and some vegetables in particular seasons. In this way, we take out our particular seeds from the storehouse according to the season, and we cultivate it and get the harvest the result. In this way, all those impressions according to the situation is taken out, and the soul, the eternal soul, or the Bhakti, the soul we know as person or individual being, he has to go on taking new bodies, and when the old bodies are they are old, incapable of helping the individual, then he has to give up that. Just as we cultivate some crop in a particular season, and when it is grown, it is fully grown, then we have to harvest the crop. The field is now without any crop. And those yield crop grains, we keep it in our storehouse, or we enjoy something, keep some seeds for future. In this way, the farmer means the individual soul travels. He enjoys, in between he enjoys these harvested subtle karmas in the subtler planes, and then he has to again come to the field. Field is this body. And again he has to sow some seeds, another crop. So new body is required, and this new body is prepared by the old karmas, whatever is taken from our storehouse, subconscious mind. Just as we plow the field and make the field ready for a particular corn to be grown in the field, for transplantation of our paddy, we have to make the ground wet and plow it and make ready for transplantation. We don't do this in the case of maize or wheat. Wheat we have to sow in a dry field. There should not be any water. Similarly, according to the quality or nature of the seeds that is taken from our previous karmas, the body is made. We make the farmer makes the body. Farmer means the soul, eternal soul, who goes on changing the body fields. New field, new body, he makes according to the need of the hour, what crop is going to be grown. So in that way, human bodies or animals, birds, insects, different other bodies or higher bodies, subtler bodies like gods, they are made according to the nature of the taken amount of impressions to be implied. So new body is made. In this way, the cycle goes on. And again, the soul
creates some new karma, and of three type, some intense, some middle type, and some dull karmas. In this way, the storehouse is never exhausted. Always there is seeds in the storehouse. And the farmer goes on cultivating. So the soul is eternal soul, and it goes on with different bodies, and this is how the prarabdha is understood. Not only prarabdha, the taken amount and stored amount and the present amount what he is doing. Kriyaman, sanchit, stored, and prarabdha whatever is taken. And agami also is there. Whatever is going to be put for the future. So in this way our karma is divided. So he says प्रारब्ध के अनुसार जो आ गया उसको तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। जब बीज भंडार से सीजन के अनुसार धान ही निकाला, अभी उसको तो तुम बारिश में कीचड़ में रुपाई करना, नहीं तो उखड़ भी बो सकते हैं। कैसे उखड़ बोते हैं? ढालदार ज़मीन में, और जहाँ पानी, उसको कहते हैं तराई, जहाँ पानी मिलेगा वहाँ रोपनी करेंगे। उसके अनुसार खेती को भी तैयार किया जाता है, और उसी के अनुसार बीज के अनुसार ही हमको सब काम करना पड़ता है। यही हुआ प्रारब्ध। हम उसके बिना नहीं चल सकते हैं। जो आया सामने उसको स्वीकार करना पड़ेगा भाई। तुम खेती तैयार किया और तुम अगर बोलोगे मुझे धान नहीं चाहिए अभी, मुझे तो मक्की चाहिए था, वो नहीं हो सकता है। उसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि देश काल परिस्थितियाँ ऐसे ही है। उसके बाहर तुम जा नहीं सकता। उसी को वो कह रहा है कि वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, राम यू हैव टू accept the prarabdha, taken amount, the pre-planned. You have to accept it. You cannot go against it. So don't do any self-effort from your side. Acceptance or rejection, that is your own new karma. If you accept willingly, oh yes, I want it, that means you are creating a desire and you are wanting it again and again to come. Say Rasgulla. Rasgulla has come to you, and you are, if you are eating it greedily, I want some more, I want some more, again some more. That means there is the question of enjoyer or doer, that you have the doership, you are creating karma, and it will go on for future also. If you just accept it, yes, okay, come on, करेला कल बनाया था ना, हाँ लाओ लाओ थोड़ा खा लेंगे, क्या रखा है। वो इसके लिए हमारे शुगर के लिए अच्छा है, वो हलवा भी बना है, चलो थोड़ा करेला भी खा लो, अच्छा है। उसमें अपना कोई कर्म नहीं बनता है जो आया खाया, पर कर्म कब बना? वो जो दलिया में नमक पड़ा है, इतना नमक कि खाया नहीं जाता है, गुठली बना हुआ है, और इसीलिए उसको मैं रिजेक्ट करूँगा तो कर्म बना, तो नया कर्म से फिर दूसरे किचन में माता जी बना दो थोड़ा सा दलिया हमारे लिए, ये नया कर्म होता है। और आया खाया कुछ नहीं बोला
तो वो कुछ नया कर्म नहीं होता है, उसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। अपना अपना है ही नहीं उधर। हाँ, रोज स्वीकार करो, यही तो कह रहा है वो। इतना नहीं, खाली नमकीन दलिया नहीं, जहर भी दिया गया मीराबाई को, बुद्ध देव को और मिलरप्पा को। जहर खाते हैं, मिला तो खाना है। इफ यू गेट इवन पॉइजन बाय द वे, यू शुड नॉट रिजेक्ट इट। क्या हुआ सुनो, एक कहानी, छोटी सी कहानी, स्टोरी। मैं जब पहले यहाँ आया था, पहले मैं भिक्षा करता था भोजन, निरग्नि। निरग्नि मतलब अग्नि नहीं छूना, या अग्नि को छूना मतलब प्रपंच। चूल्हा बनाया तो अपने लिए भोजन नहीं बना सकता, दूसरों के लिए। पहले अतिथि अभ्यागत, फिर जो तुम्हारे ऊपर आश्रित दूसरे पशु पक्षी, वो भी चाहते हैं, उनका पेट कैसा भरेगा। कुत्ते बिल्ली, ये को भी देना पड़ेगा। कोई अचानक कोई भिखारी आ गया, कोई अतिथि आ गया, उनको दिए बिना, और देवता को पूजा करना है, अग्नि को देना है, इसको दिए बिना तुम खा नहीं सकते हो। अगर खाओगे भुजन्ति ते त्वघम पापम ये पच्यंत्यात्म कारणात्, जो अपने लिए पकाते हैं वो सीधा पाप को ही खाते हैं। सबके लिए देते हैं। उड़िया में एक कहावत है, चौसा लक्ष्य जीव पोसा। फार्मर जो है ना, किसान, वो तो लाखों जीवों का पालन पोषण करता है। हम सब किसान के ऊपर निर्भरशील है। किसान भाई हमारा प्राण रक्षा करता है, कितने लोगों का प्राण रक्षा करता है। तो इसी प्रकार अपने आप अपने लिए खाने ये नहीं कर सकता, भोजन नहीं बना सकता। महात्मा लोगों के लिए कहा गया, सन्यासी महात्माओं के लिए, कि अग्नि नहीं छूना। अग्नि छूओगे तो प्रपंच में पड़ना ही पड़ना है। तो क्या करेगा, सन्यासी के लिए भिक्षा कानून में लिखा हुआ है, और उसके बदले तुम क्या करोगे, समाज के लिए प्रार्थना करना, समाज के लिए जो हो सकता है तुम सेवा करना, और समाज से, गृहस्थ के घर से तुम भिक्षा करके जीवन धारण करना। वह भी प्राण रक्षा के लिए सिर्फ दिन में एक बार, पेट भरना नहीं, सिर्फ प्राण रक्षा करने के लिए भिक्षा कर सकते हो। और वह जब गृहस्थ के घर में जब आग बुझ जाए, धुआं नहीं दिखेगा, मतलब भोजन रसोई करके खा पी लिए, तब जा कर के उसके घर में जा कर के भिक्षा करना। तुम्हारे बचत माल के ऊपर हक है, लेकिन खाने के पहले अतिथि आ गया, महात्मा आ गया, तो गृहस्थी लोग दे देंगे, उनको देना है। और हो सकता है वो भूखे रह जाएंगे, तो उसके लिए तुम जिम्मेदारी नहीं उठाना। मतलब गृहस्थी जब खा पी लिया है, जो बचत रह जाता है उसके ऊपर सन्यासी का, साधु का हक है। उसके ऊपर खाली सन्यासी का नहीं, पशु पक्षी, भिखारी, और सबका हक है। तो मैं क्या क्या पहले जब आया, पहले तो क्षेत्र में रोटी लेता था, उत्तराकाशी में रहा लगभग 1 साल। तो जब यहाँ आया,
यहाँ कहीं क्या करें, गांव में माधुकरी करता था। जब देखता था गांव में कब भोजन बनता है, उसके बाद खा पी करके गांव के लोग सब खेती में अपना काम करने के लिए जंगल में गायों के पास खेती में चले जाते हैं। जो बचत कोई घर में कोई होंगे बूढ़ा बूढ़ी या नहीं तो कोई बच्चे, और जो बचत माल होगा मैं जा कर के भिक्षा करता रहा। वह भी 5-6 घर से ज़्यादा नहीं, तो मैं जा कर के ले आता था और गंगा किनारे खा करके, और जो मिला एक बर्तन में दाल चावल रोटी और जो कुछ सब्जी जो कुछ मिला एक ही में, अरे पेट में जा कर के तो मिलेगा। कभी कुछ नहीं मिला तो भूखा रहो, ऐसा कितने बार होता था। तो एक और ये भिक्षा का मौज लेने के लिए उत्तरकाशी से महात्मा लोग आते थे। एक बार लक्ष्मण दास जी आ करके पहुंच गए, माता जी का गुरु जी। ये बहुत पहले की बात, लगभग 66-67 की बात है। मैं कमरे से निकलता हूँ बाहर, वो तो बैठा है कोई भूत कपड़ा ओढ़ करके, 4 बजे आ करके बैठ गए। फिर बाद में मैं डर गया था, कौन है इधर, तो फिर मैं आया, जब उठे, अरे स्वामी जी आप इधर बाहर बैठे। अरे मेरे दिल में आ गया चलो प्रेमानंद के पास चलते हैं, भिक्षा करेंगे गांव में। गए थे भिक्षा करने के लिए, उनको कोई भिक्षा दिया नहीं। अरे लंबे चौड़े और राजकुमार के माफी, और वो आल्फी पान रखे हैं और 6 फीट डंडा हाथ में, और हाथ में सोने का घड़ी, कौन देगा भिक्षा, ये कोई भीख मंगाए। और उनकी मस्ती बाहर टाट का अल्फी और अंदर तो सिल्की। मौज उनका था। साधु का मौज बड़ा विचित्र होता है। तो ऐसे ही एक बार महात्मा, दूसरे महात्मा लोग कभी कभी आते थे, चलो प्रेमानंद के साथ भिक्षा करेंगे, गांव में मौज लेंगे। एक बार एक बूढ़े स्वामी जी आए, उनका नाम नेपाली बाबा थे फक्कड़। एक खप्पर उसके सिर में रखेंगे, जहाँ गए उसी में जो हुआ, और दुनिया में उनका कुछ नहीं। एक खप्पर उनका संबल, उतना ही धन है दुनिया में। तो खप्पर में जो भिक्षा मिल गया, खा पी करके गंगा जी में धो लिया और चल दिए। दिन भर के खाना पीना छोड़, छुट्टी। बड़े विचित्र महात्मा लोग होते थे पहले। तो एक दिन आगे, अरे प्रेमानंद तेरे साथ भिक्षा के लिए जाना है रे यार। दिल क्या, चलो गणेशपुर चलेंगे। मैं कहा सांझे आप बूढ़े बाबा क्या आप जाएंगे, बैठे रहो ना, मैं ले आऊँगा, दोनों के लिए ले आऊँगा। तो ला सकता है? मैं कहा हाँ, कमंडल तो बड़ा है, इसमें भर के ले आऊँगा। 5 घर से नहीं 10 घर से लाऊँगा, आप भी खा लेना। ठीक है जाओ। अरे कौन जाता है, तो तुम ले आएगा तो ठीक है। मैं कहा हाँ साझे आप बैठो, धूप तापो, ठंडी का समय था। वो नीचे जो पत्थर है उसके ऊपर कुटिया थी, तो बैठे। मैं ले आया भिक्षा, दोनों बांट लिए। मेरा कमंडल में रहा, उनको जितना चाहिए उनका खपर में दे दिया। बैठ के धूप में खा रहे हैं। खाने के बाद धो धा लिए और धूप में थोड़ा बैठे हैं। तो वो सर्वानंद जी एक कुछ लेकर के हाथ में मेरे को दिखाता, अरे प्रेमानंद देख तो ये क्या चीज़ है। मैं कहा छी, इसको क्यों हाथ में उठा करके दिखाते हो, ये क्या चीज़, ये हड्डी का टुकड़ा है क्या यार, आप देखते नहीं, इसको क्यों हाथ में ले करके बैठो चुपचाप, धूप तापो।
ना नहीं यार, देख देख अच्छी तरह देख, ये क्या चीज है। मैं कहा हड्डी है। अच्छा पक्का? हाँ भाई पक्का हड्डी है। अरे मेरे खप्पर से निकला। जो मैं सब भिक्षा लाया था उसी के अंदर था वो हड्डी। कैसे? किसी का घर में कुछ मुर्गा वगैरह बनाए होंगे, तो महात्मा अगर पहुंच गया तो जल्दी जल्दी देना है, वही कड़छी से भात या और सब्जी सब्जी कुछ निकाल के दे दिया, हड्डी लगा हुआ था। उसको भी खाना पड़ता है और उल्टी थोड़ी करना है। अरे खाना, अरे खाया तो खाया, क्या हो गया? कोई तो मांस खाते हैं, तुम भी खा लिया तो क्या हो गया? तो है कभी घी गना, कभी वो भी मना। ऐसा हुआ जिंदगी में कितने बार। स्वामी जी ने भेजा एक बार, कह रहे जा भिक्षा लेके आ, बहुत छोटी उम्र थी, तो जैसे नॉक किया कि क्यों माँ बाप मर गए, भीख मांग रही है, भोजन दिए कमा के खा। मैं तो रोने लगी, छोटी थी, मैं गई स्वामी जी के पास, मैं स्वामी जी भिक्षा लेने गई, दिया तो कुछ नहीं, गाली दे दी। बोले कुछ दिया तो सही। वही तो वही तो दिया, वही तो कुछ दिया ना उन्होंने। बुद्धदेव को कोई गोबर फेंका था, उसको भी दिया। कृष्णा अर्जुन गए थे भिक्षा करने के लिए। कृष्णा को कोई बुढ़ी, उसका गाय था, गाय का गोबर फेंका। ये भिखारी लोग आ जाता, मेरे घर में कुछ नहीं खाने के लिए। वो कहानी दूसरा। जैसे मतलब कहने का, जो भिक्षा में मिला वो सब खाना है। जहर भी मिला जहर खाओ, मांस भी मिला मांस खाओ, और अमृत मिला तो अमृत खाओ। कभी त्योहार होता था तो गांव में सब बनाते थे, पापड़ मधुसवाड़ा और बढ़िया सब हलवा उलवा सब बनाते थे, पापड़ सब देते, इतना इतना देते हैं। फिर मैं ला करके महात्मा लोगों को उत्तरकाशी से बुलाता था, आ जाओ भाई भंडारा करेंगे। जो भिक्षा मांग करके लाया। 4-6 महात्मा लोग बैठ के मौज लेते थे। एक दिन 3 दिन का बासी चावल इतना मिला, चबाया नहीं जाता है। गंगा जी के किनारे जा कर के बैठ के उसका पानी डाला, पत्थर से मसला, चबाया नहीं जाता है, थोड़ा भिजाया। और फिर वो पानी के साथ पेट तो भरेगा नहीं इतने चावल में, खूब अच्छी तरह घोल घाल करके फिर पिया। चलो आज दिन के लिए छुट्टी। कहने का मतलब प्रारब्ध इसी को कहते हैं, और इसके ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं। बोलने के लिए जो मिला सो स्वीकार करो। यही वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जी के लिए। एक ज्ञानी अथवा एक कोई भिक्षार्थी, सन्यासी, परिव्राजक सन्यासी, इन लोगों का ये नियम है। अपना कोई नहीं है, बैठ कर के उधर नहीं खाना घर में। इतना कहाँ होता है, कहना है कानून कि गृहस्थ के घर के अंदर नहीं जाना, आसक्ति लग जाएगा, प्यार हो जाएगा। नहीं जाना। ये आश्रम बनाना ये कोई सन्यासियों का काम थोड़ी है। ये तो बहानाबाजी, हम समाज सेवा कर रहे हैं, बहाना। ये सन्यासियों का काम नहीं, अनफिट। तो प्रारब्ध अच्छी तरह समझ गए। प्रारब्ध में जो मिला उसको स्वीकार करना, अपना नहीं कुछ। हाँ नहीं नहीं नहीं, देयर इज नो चॉइस फॉर यू, whatever comes by the way. I was telling the story how
Whatever comes by the way for bhiksha, alms, I used to live on alms for 9-10 years. I lived like that. I had nothing. I didn't cook. Going to village and bringing whatever we get. Whatever is given to you, you have to eat it. You cannot waste it. So there is no choice for you. You have to accept whatever comes by the way at present, that is to be unattached, unconcerned with the worldly affairs. That is what Ramji is advised by वशिष्ठ जी. इसको कहते हैं प्रारब्ध. और अंतर्मुख इंट्रोवर्टनेस, सदा परमात्मा का चिंतन करना, और इसमें आसक्ति नहीं रहेगा और आशाएं भी नहीं हो सकते हैं, और इसमें फिर दिल में और आएगा क्या जब कुछ काम नहीं दाम नहीं है, और किस चीज़ का चिंता करोगे तुम? ना कोई दोस्त, ना कोई खाना पीना, ना कोई लेना देना, तो क्या चिंता करोगे? जबरदस्ती भगवान का चिंता करना पड़ेगा. यू आर बाउंड टू बी इंट्रोवर्ट बिकॉज देयर इज नो अदर वर्क फॉर यू. और परिव्राजक के लिए तो कहीं नहीं आ सकती. एक कहावत है, द वॉन्डरिंग मॉन्क्स. एवरी डे यू हैव टू गो ऑन, you have to rest in one place at least maybe one night, or else you have to go on. And if some big city or big village is there, or pilgrimage, place of pilgrimage, then you may rest there highest 3 nights, not more than 3 nights. Then you have to move on. So how can you develop attachment or love for anyone? No question. No question. You are always free from attachment, and you see, relationship, nobody is your relation. Today they are your friends, tomorrow forgotten. In this way, the whole earth is your family. It becomes like that. Wherever you go, that is your land, that is your village. They are your people. You have to adjust with them. In this way, this advice is given to Ramji. O Ram, be unattached. You have no other work than thinking of the absolute introvertness, and outwardly whatever comes by the way, it is passing clouds. Let it go. Let it come and go. Don't be concerned with it. भद्रा आकाश के सदृश विशद हो जाइए, प्राज्ञ बनिए, एक चिन्ह मात्र में अपनी ही स्थिति बनाइए. सम सौन्य एवं पूर्णानंद से युक्त हो जाइए, तथा अपने अंतःकरण को ब्रह्म सदृश आनंद रस में सरोवर कीजिए. वो कह रहे हैं खाली चूड़ा मत खाओ, उसमें चूड़ा पोहा, खाली चूड़ा मत खाओ यार. उसमें थोड़ा दही, थोड़ा आम का रस वगैरह हो जाए, और थोड़ा चीनी
और थोड़ा नींबू, नमक, इसको सब मिलाओ अच्छी तरह, सरोवर कर हो जाओ सारे रस से। अरे खाली सूखा भात मत खाओ, दाल, सब्जी, थोड़ा चटनी और थोड़ा मट्ठा भी डाल दो उसमें, हाँ मिला करेंगे। साउथ इंडियन स्टाइल। Mix up everything. So Vasistha is asking Ram, Ram, please be saturated, be mixed up totally with the thoughts of absolute. There is no world. Don't be attached to a world by some desires or attachment or by association. Nothing is there. Be introvert, always think of the absolute and get saturated, get what we can say, उत्तप्रोत, क्या और कहेंगे, being saturated, being one with it. Merged in it. आकाश के सदृश विशद हो जाइए. He gives some examples. Be like unattached like sky. आकाश में कितने हम आग जलाओ, कितने बारिश आया, कितना भीग गया, कितने बर्फ पड़ गया, जंगल में कितने आग लगता है, कितने धूप होता है, आकाश का क्या लेना है ना. ना किसी से लेना ना किसी से देना. इतना बारिश हो गया कल रात से आज तक, है आकाश भीग गया या आकाश सूख जाएगा धूप कड़क होने से. द स्काई इज never affected by these whole day night rains, nor by piercing sunshine. Nothing happens to the sky. O Ram, be like sky, unattached, unconcerned. Pragyamanya, be always thoughtful and knowledgeable. Prajna means intuition. Be always, keep up your height in thought level. That means think of the subtler matters. Don't think of these gross name and forms. Always be merged in contemplation, meditation. That is to be prajna. Think of the higher things. एक चिन्ह मात्र में अपनी ही स्थिति बनाइए. स्थिति मीन्स एस्टैब्लिशमेंट और conviction, mental conviction. Be always established in the thoughts of absolute. और सम और सौन्य एवं पूर्णानंद से युक्त हो जाइए. Be always, have always equal vision. Don't see the differences. See always the equanimity. Keep up your balance of mind. Don't see the diversities. समता को रखिए. शून्य, शून्य हो जाओ. शून्यता को बनाए रखो.
be emptied. Don't keep anything inside. That is called purity. Empty means having no anything in the heart. That means be transparent, be pure. Don't keep anything in the heart. Clean. और पूर्णानंद में युक्त हो जाओ and enjoy the full blessedness. Be enjoying always the bliss fully. Don't give any chance to other mundane thoughts to enter in. Close your doors of the gate of the body, all the senses, and whatever way the mundane objects or names and forms can enter into your heart, close them, enjoy inwardly. इसको एक मज़ेदार कहानी सुनो। मैं जब उत्तरकाशी में रहता था, भिक्षा के लिए जाता था, सब महात्मा जाते थे। कोई कोई बूढ़े महात्मा लोग, उनके पास भक्त लोग कोई होते तो थोड़ा बहुत पैसा या और कुछ सामान उनके पास रहता था। तो शीतकाल में और दूसरे समय में भी थोड़ा सब्जी तो कम से कम मिल जाए, दाल मिलेगा, पानी गंगा जल जैसे, उस गंगा जल में कुछ कॉकरोच के टुकड़े, बीड़ी के टुकड़े और चूहे के लीद मिलेगा दाल में। दाल में नजर आते थे, व्हाइट वाले कीड़े भी नजर आते थे जो काली कमली से भिक्षा मिलती थी। हाँ जी, वो जो दाल में उसको खाना है, नहीं तो क्या करोगे, सूखा रोटी कैसे खाओगे। मैं क्या करता था, वो सूखा रोटी में भी वो दाल भी पूरा नहीं पड़ता था, तो पहले से रोटी को भिजा देता था, ज़्यादा हो जाएगा, पेट नहीं भरता है। अरे जो 4 बार खाने वाला 1 बार खाएगा तो क्या होगा उसका। है गोता लगाओ गंगा जल। तो बूढ़े महात्मा लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा कहीं कोई दिया, या नहीं तो कहीं से आलू अगर मांग करके ले आए गांव से, तो ऐसे ही ला कर कुछ रखते हैं, थोड़ा सब्जी बना दिया। नहीं तो कभी वो दाल को थोड़ा छान छुन करके थोड़ा तुड़का लगा दिया। नहीं तो कभी कहीं कुछ चटनी पीसी लिया, थोड़ा सूखा चावल, कैसा चावल तो मिलता नहीं, खाली रोटी। चावल तो सपने में भंडारा में मिलेगा, चावल सब्जी ये सब भंडारा में मिलता है। हर रोज़ हमारा सूखा रोटी और गंगा जल के फिर दाल, उसमें गुजारा करना ही पड़ेगा। तो कोई कोई महात्मा के पास होता था, एक बूढ़े स्वामी थे, उनके पास थोड़ा घी रहता था। शीतकाल में थोड़ा घी खाना चाहिए, ताकत रहेगा। तो वो क्या करेंगे, कमरा चारों तरफ से बंद करके, जब लाएंगे रोटी और दाल लाएंगे ना क्षेत्र से, कमरा चारों तरफ अच्छी तरह बंद करेंगे। एक स्टोव रखते थे केरोसिन का, उसमें फिर वो दाल को तुड़का लगाएंगे घी में, खुशबू कहीं बाहर चले जाएगा, कहेंगे ये माता क्या कर रहा है। हम कभी कभी मजाक करते थे, हम जा करके वो खिड़की के पास सूंघते थे। शाम को जब घूमने जाएंगे तब मजाक करेंगे, स्वामी जी आज कुछ खुशबू आ रहा था। अरे यार कुछ नहीं था, वो मिर्ची था। करे क्या, ये तो सच्चाई है। कहने का मतलब बाहर से कोई अंदर आ न सके, नहीं तो फिर बांट जाएगा दाल। अपना जो घी का आनंद अपने आप लूटो,
दरवाजा बंद करो कहने का मतलब समझे, वो खुशबू भी तुम्हारे लिए और वो घी भी तुम्हारे लिए। ब्रह्मानंदमय हो जाओ, बाहर से सारा गेट दरवाजा बंद कर दो, वो महात्मा के माफी, अरे अंदर कोई झांक नहीं सकते। दुनिया के ये जो नाम रूप ये सब है, ये इंद्रियों को बहुत पटाने वाले हैं। स्वामी जी हमको भी थोड़ा दे दो ना दाल। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। ये तो मैं मिर्ची खा रहा हूँ यार, मिर्ची मिर्ची क्या खाओगे। ऐसा ही राम जी सारे इंद्रियों का दरवाजा बंद करो, अंदर ब्रह्मानंद का लूटो, लूट मचाओ, ब्रह्मानंद में का आनंद लो, आनंद रस में सरोवर हो जाइए, समझे। हाँ, तुड़का लगाना घी का तो दरवाजा बंद करो। नहीं तो कोई सूंघ लेगा तो मांग लेगा, सांझे हमको थोड़ा घी दे दो, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा है तो ब्रह्मानंद रस को हृदय के अंदर लूटो, और बाहर से सारा गेट दरवाजा जितना ये इंद्रियों का सब बंद कर दो, आँख कान नाक। No entry for outsiders. All these worldly names and forms. Enjoy your blessed state within your heart. Let others not come inside. When you eat something valuable, palatable, close your doors or others will come and ask you, what are you eating? Please give milk. No, no, don't give anyone. Close the doors and shut the windows. Let not anybody peep at you. That is what he is telling. Enjoy your full bliss within your heart. Let not all worldly names and forms or kith and kins, let them not enter into your heart. That is your abode. Rest inside. Enjoy there. मैं रखा हूँ मक्खन और आम ला करके स्टोर में रख करके चाबी लगाता हूँ। परंतु अपने खा नहीं पाता हूँ, बांटना पड़ता है। नहीं, ये सब मना है, सेल्फिश बनना, किसी को नहीं देना, अपना ब्रह्मानंद रस को किसी को नहीं बांटना। हाँ, कोई आकर डिस्टर्ब न कर दे। आम को रस बनाओ और फटाफट पी लो, और वो जो आम का गुठली और छिलका थैला में बांध करके बाहर फेंक देना। अरे चोरी कैसे करना सीखो। सुहासिनी, हाय, अभी पूना में आम मिलेगा? अभी नहीं मिलेगा स्वामी जी, अभी टाइम है। अच्छा, खत्म हो गया। दे दूंगी किसी को आप। नहीं देंगे, अरे नहीं तो क्या करेगा। हे राम, ब्रह्मानंद रस को अपने आप लूटो, बाहर से वो दरवाजा बंद कर दो, किसी को झांकने मत दो। राम जी, प्रारब्धवश प्राप्त हुए छोटे बड़े शोक, आपत्ति, घोर संकट और अबट गर्त आदि सभी प्रसंगों में भीतर दुखी न होकर देश धर्मों के अनुसार
एवं क्रमानुसार रुदन, अश्रुपात आदि पर्यंत दुखों का और शीतोष्ण आदि में युक्त वस्त्रादि भोग रूप सुखों का अनुभव करते चलिए। ये और एक बड़ा मज़ेदार बात बता दे वशिष्ठ जी। पहले तो हिंट्स दिए थे, अभी पूरा खुल्ला खुला बोल दिए। बोलते हैं राम बाहर थोड़ा ड्रामा करो। ड्रामा करो। कोई दुख का, कोई मर गया, कोई दुख का खबर आया, थोड़ा आंसू बहा दो। और कोई कुछ हो गया, उनके लिए थोड़ा प्रार्थना कर लो। और बाहर ये सब दिखावटी सब करते रहो। इसका मतलब ये है, एक ज्ञानी को डबल डीलिंग करना पड़ता है, यही है ना। बाहर और कुछ, अंदर और कुछ। तो इनको ज्ञानी कैसे कहेंगे भाई हम? पहले तो महात्मा का लक्षण क्या कहा था? मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्य एकम महात्मनाम। Whatever you think, you must speak out it, and whatever you speak out, you have to do accordingly. Your actions, your speech, your thoughts must coincide with each other. Then only you are called a Mahatma, or else you are a Duratma, means a rogue, first class rogue. If you think something else, speak something else, do something else, you are called by the wise people a rogue. रोग। तो क्या करें? तो क्या महात्मा लोग डबल डीलिंग नहीं करते हैं? बाहर तो और कुछ करते हैं और अंदर और कुछ। क्या होगा? क्यों नहीं सवाल पूछते हैं? वो करें बाहर तो जो कुछ आ रहा है, सुख दुख दिखाओ, थोड़ा अश्रुपात कर लो, और जब सुख आता है कहीं, उसको खा करके आनंद लो बाहर। और कोई प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा चिंता जैसे करते हैं ऐसा दिखाओ, चिंता करो। और अरे इतना बड़ा समस्या आ गया, भारी बाढ़ आ गया, वो गांव वाले बड़े परेशान में हैं, जाना है, रिलीफ काम करना है, मना नहीं, जाओ जाओ। उनको दिखा और उनको पकड़ के थोड़ा रो लो। अरे तेरा लड़का बह गया पानी में, आहा क्या सुंदर अच्छा लड़का था, थोड़ा करना पड़ेगा। ये सब बाह्य जो हमारे परंपरागत जो कर्म सब है, उसको करना मना नहीं है। करना मना नहीं है तो कैसा करोगे यार? और कह रहे हैं और क्या? घोर संकट आदि सभी प्रसंगों में भीतर दुखी न होकर देश धर्म के अनुसार एवं क्रमानुसार रुदन, अश्रुपात आदि पर्यंत दुखों का और शीतोष्ण आदि से युक्त वस्त्रादि भोग रूप सुखों का अनुभव करते चलिए। ठंड लग रहा है तो नंगा नहीं जाना, ओढ़ लो। हाँ, बढ़िया बढ़िया स्वेटर और जैकेट पहन के जाओ, कोई मना नहीं करता है। तो फिर तुम ही तो कहते हो कुछ ग्रहण नहीं करना जो आए अपने मन से। कोई ओढ़ देगा तो ओढ़ लेना, नहीं तो नहीं करना, ऐसा कह रहे होते ना। अभी जो आएगा उसको स्वीकार करना, जो नहीं आया उसको ग्रहण नहीं करना, वही तो कर रहे हैं। कौन सा मना कर रहे हैं? अरे कोई दे दिया ना, वो सेठ लोग आते हैं शीतकाल में, सब बांटते हैं। हमारे चाटर जी थे ना,
वो ओवरकोट सबको सारे महात्माओं को ले देते थे, तो लेना चाहिए। और ठंडी आएगा पहन के घूमो। तुम मांगा तो नहीं ना, जबरदस्ती किसे छीन लिया क्या, तो क्या हर्जा हो जाता है? हैं? ओवरकोट पहन लेने से क्या चमड़ा निकल जाएगा तुम्हारे से? पहन लो। नहीं है, मांगने के लिए मत जाओ, सहन कर लो। कैसे सहन करेंगे इतना ठंडा? अरे पत्ता पड़ा है, वो सारा इकट्ठा करके आग जला करके आग तपो, क्या रखा है? कचरा पट्टी साफ हो जाएगा। कुछ ना कुछ जैसे बाहर जैसे व्यवस्था है, सिचुएशन जैसे है, whatever is outside conditions or situations, just adjust with it. उसी को तो गुरुदेव कहते हैं adjust and accommodate, this is highest साधना। इसको इनडायरेक्टली यहाँ हम कर रहे हैं दूसरे भाषा में, वर्तमान को स्वीकार करो, उसको रिजेक्ट मत करो, बस हो गया। एडजस्ट, अकोमोडेट। पेड़ के नीचे रात हुआ, वहीं सो जाओ। तो मंदिर में रात पड़ गया, शाम हो गया, मंदिर में सो जाओ। कोई डंडा लाई करेगा, आया निकाल दिया, इधर नहीं रहते हैं कोई रात को, चलो हाँ चले जाओ बाहर, क्या हुआ? जा कर के कहीं मिट्टी में सो जाओ। रास्ता के किनारे वो जो पारापेट बनाते हैं ना डीजीवार वाले, उसके ऊपर कितने जिंदगी बिताया। मौज, उसका मौज कहीं नहीं मिल सकता है तुम्हारे बढ़िया पलंग के ऊपर। आसमान हमारा छत है, दिशाएं हमारे रक्षक हैं, और पत्थर हमारे तकिया है। मौज लूटो। इसी प्रकार वो कह रहे हैं राम जी को, थोड़ा बाहर दिखावटी करो। दिखावटी मतलब इसमें ये डबल डीलिंग नहीं, डबल डीलिंग नहीं। क्यों? अगर तुम डूयरशिप रहेगा तब तो डबल डीलिंग कहोगे ना। अंदर तो और कुछ करते हो, बाहर और कुछ दिखाते हो। लेकिन महात्मा का, ज्ञानियों का वो डूयरशिप नहीं होने से ड्रामा तो कोई भी कर सकता है भाई। क्या वो लड़का राम जी का पार्ट किया था तो क्या उसको राम बन गया वो? है उसको क्या लंका जा करके सीता जी को ढूंढने के लिए जरूरत पड़ा? है क्या क्या अनासक्त अंदर से वो जानता है मैं तो एक ड्रामा कर रहा हूं। रोया, वो रोया भी, हाय मेरे सीता, हा खग हा मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तेरे रोना खूब, आंसू बहाओ, इनाम मिलेगा यार। इनाम मिलेगा। बढ़िया रोया वो, है वो राम जब पाठ कर रहा था ना, खूब रोया, बढ़िया बढ़िया रोया। लोग ताली मारेंगे, रोएंगे नहीं तुम्हारे रोने से। तो डू प्ले ड्रामा, weep while it is wanted, and dance with joy when it is situation is like that, but don't be concerned with it inwardly. Don't bring your doership or enjoyership. Inwardly you are different, outwardly you have to play the drama. That is what the great people do. And Vasistha advised Rama, oh Rama, at the time of need you can weep, and when
You have to enjoy. You can dance with joy. Never mind. But don't be concerned. Don't be entangled in it. Don't have doership. Inwardly you are unattached, you are different, outward different, but this double dealing will not affect you because you are not the doer. You are just an unconcerned actor. You will be rewarded. Don't worry. और रोने में भी इनाम मिलता कैसे? बॉम्बे में ये प्रथा है, कोई बड़े बड़े ऑफिसर लोग घर में जिनका कोई नहीं है, एक कोई है, कोई बूढ़ी माँ थी मर गई, तो ऑफिस जाना है, छुट्टी नहीं मिलेगी, तो ऑफिस तो जाना है, क्या करेंगे? माँ मर गई तो रोना तो चाहिए ना, तो वो पैसा दे करके रुदाली बुला लेते हैं। रुदाली है, राजस्थान में, बॉम्बे में भी था पहले, आजकल भी होगा क्या पता। कोई कोई घर में जो रोने के लिए कोई नहीं है, किराए में ले आते हैं रोने वाले, उनको बोलते हैं रुदाली। औरत लोग और कुछ मर्द लोग छाती पीट करके खूब हल्ला मचाएंगे, खूब रोएंगे, लोटा भर भर के आंसू बहाएंगे, वो ट्रेंड है। मिर्ची घिसेंगे, खूब आएगा आंसू, मेरे पिताजी, और ऐसा रोएंगे कि आसपास के सब लोग आ जाएंगे, ऐसा सोचेंगे ये घर के आदमी सब रिश्ता नाता, ऐसे ही रोएंगे। और जब ऑफिसर आ जाएगा, सब काम हो जाएगा, तो पैसा 2000 4000 दे दो, बड़ा मज़ा आया, चलो, और खूब रोए, आपस में बात करेंगे, मौज लूटेंगे। हाँ, दे आर वीपर्स, वाइपर्स नहीं, वीपर्स। They weep for others. They take money, they take contract to weep. There are some such groups. And they take money in contract, and they will go to somebody where there is nobody to weep. They start weeping and shouting and creating havoc so that people will know somebody is dead. So in that way you can go on weeping. You will be rewarded. Go on enjoying. Just like the onlookers, the clappers are the winner in the audience of the football match or cricket match. Oh, खूब हल्ला करेंगे, क्रैकर लगाएंगे, हाँ 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 हाँ, खूब नाचेंगे, but good for nothing. They are not at all concerned. चीयर करेंगे, 3 cheers. मुझे लाख न करोड़ चाहिए, मुझे सतगुरु जी तुम्हारा प्यार चाहिए। स्वामी जी बोलते थे, खाली प्यार से काम चल जाएगा ना जब जाओगे तो बात ऐसा है, राम जी को एडवाइड, वशिष्ठ जी एडवाइज राम जी, go on doing everything, acting, weeping, enjoying, and doing everything outwardly, and showing everything, and inwardly not at all concerned, not at all involved, no doership, nothing. You are totally different. There is no harm. You can play this role in this world because your body, your senses, your mind, everything is there. So they will do their duty. Let them, allow them to go do whatever they like.
इसी तरह इसको कहा गया, इस हालत में जो पहुंच गया उसका कहते हैं यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र परामृतम। जहाँ भी मन गया, जहाँ भी नजर गया, आँख कान नाक सब गए, आनंद ही आनंद। आग लगा तो आनंद है अंदर, और कोई रो रहा तो मौज जा रहा। सचमुच जब अगर देखोगे, देखने हालत में अगर देखोगे, जब कोई मर जाता ना, देखे ना चारों तरफ बेड़ घेर करके कैसा रोते हैं, अगर सोचोगे हंसी आती है। ये सचमुच रोते हैं क्या? 2 दिन के बाद सब भूल जाएंगे, 2 घंटे में सारा भूल जाएंगे। और कितनी छाती मेरे बाबा क्या क्या ड्रामा करते हैं, हैं? 2 घंटे के बाद सब भूल जाएंगे। वो चीज़ को हम अगर देखते हैं, मेरे को हंसी आती है भाई। मैं बहुत बार मेरे को हंसी आती है। मेरी अपनी माँ मर गया, मेरे को आंसू नहीं आया। तो कहोगे वशिष्ठ जी कहते हैं रोने का ड्रामा करो। हाँ, थोड़ा ड्रामा, कोई आएगा तो उसके सामने रोना पड़ेगा। अरे माँ मर गया, तू रो ही नहीं रहा। हाँ बेचारी बहुत दुखी थी, बहुत। अभी 4-6 दिन के पहले पूर्वाश्रम की बहन मर गई। दीदी, मेरे को खुशी हुई, बेचारी तकलीफ थी। हाँ, बहुत आनंद आया कि बेचारी तकलीफ से तो गई। तो ये देखने से बड़ा हंसी आती है भाई। दुनिया लोगों को देखने से क्या ड्रामा करते हैं देखो तो, 2 मिनट के लिए बड़ा बहाना बना के। और बैरागी देखो, मुर्दा लेके जाएंगे श्मशान घाट में। आहा, दुनिया में कुछ नहीं, पल भर का जिंदगी। हाँ जी। और जैसे घर पहुंचे, साला मेरा पैसा नहीं दिया, 2 साल हो गया, ब्याज पहले रहा, बाद में पैसा देना। मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, कैसे तेरे को कठगढ़ में खड़ा करूंगा। कठगढ़ मतलब कचहरी ले चलूंगा। वो लकड़ी का होता है ना, उसके अंदर खड़ा, तो कहा होता है तेरे को कठगढ़ में खड़ा करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो ये घर में ये हालत, श्मशान घाट में क्या ड्रामा करते हैं। तो ये तो मूर्ख लोगों का करना है। पंडित लोगों को भी ऐसे ही ड्रामा करना, दूसरों को दिखाने के लिए थोड़ा आंसू बहा देना, अंदर से नहीं। खाली इतना ही अंतर, मूर्ख लोगों का ये जो दिखावटी ड्रामा, ये स्वार्थ पर हो करके, स्वार्थ दृष्टि से करते हैं, दूसरा मतलब रहता है। और ज्ञानी जो करता है निस्वार्थ करता है, अंदर और कुछ बाहर और कुछ। और अज्ञानी भी अंदर और कुछ बाहर और कुछ ऐसा करता है, उसको कहते हैं डबल डीलिंग। दूसरे को दिखावटी रोता है, और अंदर है साला मर गया, मेरा दिया नहीं, मेरा जो लोन लिया था ना 10,000 रुपया मेरा गया, पानी में गया, साला मर गया, उसका लड़का थोड़ी देगा, इसीलिए रोता है। तो इतने ही अंतर ज्ञानी और अज्ञानी में, पर दोनों रोएंगे, कोई बात नहीं। पहचाने वाला पहचान जाएगा। हाँ जी, क्या कहा वो, समझने वाले समझ गए, ना समझे अनाड़ी है। जो समझदार है वो ज्ञानी को समझ जाता है, और जो मूर्ख है वो दोनों को कहते हैं ये अज्ञानी है, दुनियादारी। लेकिन अंदर कौन जानता है कि इसका क्या है। इसी प्रकार हम
in this way, be a double-dealing wise man, be inwardly happy, ever unconcerned. Outwardly, you may play the role of weeping and dancing, both. That has got no influence over your inward personality. That is allowed. That's how you have to lead your earthly life, and world cannot enter into your heart. Lead such a life, O Ram. Enjoy your life. दुनिया में हम आए हैं रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए आए हैं। हंसना सीखो मेरे भाई, सारे रोगों की यही दवाई। लक्ष्मण दास जी महाराज कहते थे। हंसना सीखो मेरे भाई, सच्ची बात है। अंदर से हंसना सीखो, सारे रोग चले जाएंगे। ये रोग तो दिखावटी है यार। हरिओम। फिर कल देखेंगे आगे क्या क्या ड्रामा करना पड़ता है ज्ञानियों को। ये सारा वेदांत को डेली लाइफ में लाना, ये सारा इसके अंदर है। वेदांत को प्रैक्टिस करना मतलब ड्रामा करना। तेरी के आज समझे, वेदांत को प्रैक्टिकल करना मतलब ड्रामा करना सीखो। फिर कल देखेंगे और क्या सूत्र मिलता है हमको। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोगवशी जी भगवान।